तो then we'll add. Okay, तो ये क्लियर हो गया। कैसे निकालना है, फिर इसका एवरेज निकाल देना है, जो भी ये आता है टोटल डिवाइड बाय 5, बस 5 प्रोसेसेस है। सेम थिंग गोस फॉर दिस आल्सो। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सचिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है एग्जैक्टली, क्या रूल होता है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जैसे उनका अराइवल टाइम रहता है, जैसे वो अराइव हो जाएंगे तो उनका कंप्लीशन टाइम जिनका 0 कम रहेगा वो पहले एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाएगा। ओके ओके, कैन यू रीड दिस? Okay, the process that comes first will be served first, and if there are two processes which are in ready queue at the same time, then the process the shortest processing time will execute first. ओके, तो लॉजिक पिछले वाले की तरह है, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर किसी टाइम पे, टाइम क्वांटम पे 3 सेकंड पे या 5, जो भी हमारा इस पे चल हम चेक कर रहे हैं, अगर दो प्रोसेस उसका एग्जीक्यूशन टाइम सेम है, तब जिसका छोटा एग्जीक्यूशन, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, टू प्रोसेस विच आर रेडी एट द सेम टाइम, देन हाँ ओके, अगर दो प्रोसेस एक ही टाइम पे रेडी क्यू में आ गए तो उस सिचुएशन में जिसका छोटा प्रोसेसिंग टाइम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो पहला रूल ये है और दूसरा रूल ये है। अभी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सुमैया, कैन यू टेल मी लाइक हाउ विल यू handle this shortest job first? What will you do? So we put 0 over here, correct? Yes. Then what will you do? Then P1 will run. It has come first. ठीक है, how long will you execute for? It will execute for 3 seconds. Correct. Oops. And then Are you writing it? yeah. Wow, then do it now. Solve it for us. Wow, I didn't know you can do it. Please solve You it. can annotate on the screen. Good. Can you please solve this then? And explain also at the same time so I can get some rest. Yeah. Okay. So P1 will run first. सौम्या बहुत पढ़ी है आपने, मैं बता पढ़ाई रहा काफी किया है। हूँ इसमें मास्टर, इसीलिए इसको बोल रहा हूँ मैं, सॉल्व करे। मुझे डर लग रहा है मेरा क्या आएगा एग्जाम में। सज्जन भाई, हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी भाई, हम लोग इतना नहीं तैयार है। ये दिन रात पढ़ रही है माशाल्लाह। And then at time 3, P2 and P3 have arrived. Okay, ठीक है। P3 has the shorter processing time 1. Correct. So P3 will go first. Perfect. Let's put that. Then the time इतना is easily 4. कैसे declare हो यार? You can also write. Okay. You choose the annotate option. Okay, good. Carry on. Then तो वहाँ पे 4 at क्यों? time 4. Sorry. Why did you write 4 there? Because P3 will run for 1 unit. Correct. Exactly. Carry on. Then at time 4, P2 and P4 are in the queue. Then P4 has processing time 4, so it will go first. Okay, let's do that. And then P2 and P5 are there. Okay. So P2 has 6 and P5 has processing time 4. P5 is shorter. Then the time will be 12. And then last P2. The time is 18. Okay, good. So it has processing Can you time. put the completion time now? Completion time for P1 is 3. Yes. P2 is 18. And P3 is 4. P4 it's 8. And P5 it's 12. Good. Turnaround time? Turnaround time comes as completion time minus arrival time. 3 minus 3 is 3. Minus arrival time is 3. Then 18 minus 2 is 16. Then 4 minus 3, 1.
8 minus 4 4, 12 minus 5 is 7. अब Then waiting the time waiting is time, 80 minus turnaround PT. time. 3 minus 3 0. 16 minus 6 10. 10 put 10. After that put 0 0. ये दोनों सेम ही नंबर है. P3 0, P4 0. 7 minus 4 3. तो लास्ट वाला 3 हो जाएगा. ठीक है, अब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, समझ में आता है. टर्न अराउंड टाइम का सबका जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा. और लास्ट वाला भी. थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट होता है मैं भूल गया था. थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट होता है सुमैया? It will be. Do you remember or not? No, I also forgot. ठीक, कोई बात I'm नहीं, checking. चेक करके बताओ It's ना. the number of processes divided by the total time. So 5 upon 18. 5 divided by 18. Okay, so number of processes divided by the total time taken. Okay, cool. Let's move on. Can you clear the screen? Sajjan? Yes. Yeah. What's the round Yeah. robin primitive scheduling algorithm? Okay. Round robin primitive scheduling runs a process for a given quantum value, puts the process back in a ready queue, and then runs another process. The same process is repeated. We created two queue, ready queue and running queue. First, we bring process in the ready queue, then move it to the running queue and run it for a given quantum value. Next, after given quantum value, we bring the other process that have arrived at the same time in a ready queue. If previously executed process still has time left, we place that back in a ready queue after the arrived process. Yeah. So, great. कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है. So मैं नहीं. सिर्फ 2-3 सॉल्व कर दो. लाइक पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ just explain like 2-3 of them and then we stop there and we move on to the next one. So what is the quantum here? 2? Quantum is 2, yes. Oops. So start with P1. Put that in ready queue. नहीं, पहले रेडी में जाएगा, रनिंग में बाद में जाता है. Then it will run for 2. Put those numbers. Start with 0 and then put 2. Are you able to even cancel like P1 जो 3 लिखा हुआ है प्रोसेसिंग टाइम, उसको कैंसिल करके अब वहां 1 करो ना, ताकि पता चले कितना बचा है. क्योंकि ये नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा. तो कैंसिल 3 एंड पुट 1 देयर, बिकॉज 2 के लिए रन हो गया तो 1 बचा. ठीक है. फिर इसको वापस क्यू में डालने से पहले, रेडी में डालने से पहले हमें और प्रोसेसेस डालने हैं. तो क्वांटम 2 पे कौन कौन से आए हैं, मतलब 2 इंटरवल पे? P2. सिर्फ P2 आया तो P2 डाल दो फिर रेडी क्यू में. P2 is वहां नहीं बाबा, 6. वहां नहीं, पहले रेडी में जाएगा, रनिंग में डायरेक्ट नहीं जाता है. पहले रेडी क्यू में जाएगा, इसलिए तो रेडी क्यू बनाया ना. इसके बाद P1 जाएगा रेडी क्यू में, क्योंकि P1 अभी भी 1 बचा हुआ है. P1 को फिर से डालना होता है क्या? याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से. डालना होता है शायद, हाँ डालना होता है. करेक्ट. P1 का एक बचा है ना. हाँ करेक्ट, डालना ही पड़ेगा उसे. करेक्ट. ठीक है. तो अब P2 को रन किया 2 क्वांटम के लिए. कैन यू पुट दैट 4 ओवर देयर? या कैन यू कैंसिल 2 फ्रॉम P2 एंड मेक इट 4? अब इसमें 4 बचा. गुड.
सो फॉर क्वांटम पे कौन कौन से प्रोसेस आए हैं? Now at time 3, there was P3. But P3 और P1 P4 has to दोनों आया है। go first. P3 Yes, जाएगा और फिर P4. P4 जाएगा, दोनों आए हैं। करेक्ट। अब P1 को नीचे ले लो रनिंग क्यू में, क्योंकि अभी नेक्स्ट वही है। P2 बचा हुआ है ना, एक मिनट, P2 बचा है ना, तो P2 P4 के बाद yes. जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड राउंड रॉबिन, लेकिन करने पे आ जाएगा। Can you put P2 after P4? Because it still has some time remaining. Yes. Now let's place P3 at in the running queue. So P1 after it finishes time will be 5. No? Yes, 5, correct. Now can And you then check? P3. Can you check mark P1? That is done. Can you cancel the whole P1 from the top? और 0 कर दो वहां पे 1 की जगह। 1 को कैंसिल करके 0 कर दो। ठीक है, तो अपने को एक आइडिया लग गया कैसे करना है। वी डोंट हैव टू डू द फुल थिंग। तो यही इसका प्रोसेस है बेसिकली। पहले वाले को लाओ, फिर उसके बाद उसको रन करो गिवन क्वांटम के लिए, फिर उस टाइम इंटरवल पे अगर और आए हैं तो उसको क्यू में डालो, उसके बाद अगर बचा है तो वापस उसको रेडी क्यू में डालो। तो ये हमारा ये फंडा है इसका राउंड रॉबिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर कर दो स्क्रीन। Sajjan, can you read this one? Sure. Shortest remaining time first. It's also primitive. In this mode, it keeps checking if another process with a shorter processing time has arrived. If yes, it preempts the currently executing process into a ready queue and brings the new process with a shorter processing time in the running state. It is also known as the shortest remaining time first or shortest remaining time. करेक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक इंटरवल चूज करेंगे, जैसे हर एक यूनिट ऑफ टाइम पे हम चेक करते रहेंगे। मतलब किसी भी प्रोसेस को रन करेंगे एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए, फिर चेक कर लेंगे कि जैसे वन वन पे हम चेक करेंगे कि वन पे और कोई आया क्या, उसका छोटा प्रोसेसिंग टाइम है क्या, अगर है तो उसको रन कर देंगे पहले। तो ये इसका फंडा है। सो सुमैया, लेट्स सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 of them. So let's start with 0. P1 has arrived at time 0. Yeah, P1. let's put that. How long will it run for? 1, right? We are running for 1 month. For 1. Yeah, for 1 unit. But P2 arrives at time 2. मैं This क्या doesn't बोल use रहा हूँ? quantums, no? See, we will run it for 1 right? And we'll keep checking. Can you put 0 there from on the start of P1 at the bottom? And then put 1. ठीक है, अब 1 पे कोई और आया है क्या? नहीं आया है ना, तो फिर से P1 रन करेंगे। So put P1 again. And then put 2. 2 पे कोई और आया है क्या? P2. आया है, P2 आया है। P2 has time 6. तो उसका P1 छोटा है या will बड़ा है finish. P1 से? बड़ा है। बड़ा है, तो इसलिए वो नहीं रन कर सकते, तो P1 ही रन होगा। अभी हो जाएगा 3 तक। 3 पे कुछ आया और 3. P3 has come. करेक्ट। P3 और उसका will. प्रोसेसिंग अभी करंट कितना है प्रोसेसिंग टाइम P1 का? P1 तो खत्म हो गया ना? Yeah. कैन यू कैंसिल दैट 3 एंड मेक इट 0 फॉर P1? या एंड चेक मार्क P1 आल्सो, इट्स डन। क्या अगर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे ना, थोड़ा इजी हो जाएगा
हेड में कैलकुलेट करना। P3, अब P3 कितना 1 यूनिट के लिए रन करेंगे तो मेक दैट 4 क्वांटम। अब 4 पे कौन कौन आया, तो 4 P3 भी खत्म हो गया ना, उसको चेक मार्क्स कर दो। P3 P2 नहीं। Sorry. ओके Then P4. 4 पे P4 भी है और P2 भी है, दोनों है, बस किसका P4 is किसका lesser कम है? than. P4 wins, so let's run that। एक के लिए रन 5 तक रन करो। 5 पे आया कोई और? P5. P5 has time 4. P4 has remaining time 3. 3, can you So cancel 4 P4. and put 3 there, so at least we can compare visually। कौन कौन से प्रोसेसेस है अभी 5 पे? 3 प्रोसेस हैं, P2 है, P4 और P5 है, किसका सबसे कम है? P4. चला दो, put 6 there। 6. 6 पे तीनों प्रोसेसेस हैं, किसका सबसे कम है? P4 again. तो लुक्स लाइक कि हर बार P4 ही विन करने वाला है, करेक्ट? तो उसको हम चला सकते हैं आगे तक, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कितना बचा है? 2 बचा है ना, Yeah. मतलब डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं 6 के बाद 8, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे अलग अलग चलाएं। कंफ्यूजन नहीं करना है तो अलग अलग चला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। I'm just letting you know, if you are confident with your maths then you can do that also। ठीक है, तो P4 is done, let's cancel it। अब क्या बचा? P5 और P2। P5 का कम है ना, P5 is lesser. हमेशा P5 ही विन करने वाला है, तो डायरेक्ट 8 + 4 यानी 12 तक चला दो उसको। Put 12 there, and then the next one goes 12 + 6 which is 18। समझ रहे हैं सुमैया? अगर कंपटीशन पता है कि नहीं विन होने वाला आगे चल के, तो डायरेक्ट रन कर सकते हैं उतने टाइम के लिए, लेकिन श्योर होना पड़ेगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं, डाउट में नहीं कर सकते कि शायद कोई और आ गया। ठीक है, कूल, सो गुड वर्क, लेट्स मूव ऑन। कैन यू क्लियर द स्क्रीन प्लीज? तो ये अपन ने नहीं पढ़ा था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो आज एक दो टॉपिक और नया पढ़ते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन is the ability of one program to communicate with another program। Can you clear the screen please? Sajjan has put that. जो ग्रीन वाला है वो अभी दिख रहा है। These processes can be on the same computer or different computers connected through a network। तो इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब होता है एबिलिटी ऑफ वन प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद अनदर प्रोग्राम। अब ये दो प्रोग्राम जो हैं वो सेम कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स पे भी हो सकते हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम है, मे बी सज्जन के कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम है, तो हमारे प्रोग्राम्स अलग अलग कंप्यूटर पे हैं लेकिन हमारे सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो वही ये कह रहा है कि दिस प्रोग्राम्स कैन बी ऑन सेम और डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू नेटवर्क। प्रोसेस कैन कम्युनिकेट इनटू 2 ways, ये एग्जाम क्वेश्चन है। शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। ये दो डायग्राम है, शेयर्ड मेमोरी का और मैसेज पासिंग का, जो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। ठीक है, एक सेकंड ना, give me 1 second। Okay, so
Suppose process 1 or process A and process B are executing at the same time. ये दोनों जो process है एक time पे execute कर रहे हैं and they both share some resources. दोनों process A और process B दोनों एक resource share कर रहे हैं, ठीक है. Process A generates information about certain computation resources being used and keeps it as a record stored in shared memory. मतलब process A कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और उसको शेयर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर करता है. जब भी कभी फ्यूचर में प्रोसेस बी को उस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ शेयर्ड मेमोरी से ले सकता है. तो बेसिकली शेयर्ड मेमोरी मॉडल जो होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में वो इसलिए बनाया जाता है शेयर्ड मेमोरी, ताकि उसमें हम कॉमन रिसोर्सेज रख सकें और जब प्रोसेस ए को चाहिए तो वो ले ले और जब प्रोसेस बी को चाहिए तो ले ले और अपने अपने रिसोर्सेज वो शेयर्ड मेमोरी में डाल सकते हैं. ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है. So processes can use shared memory for extracting information as a record from another process as well as delivering any specific information to another process. In the shared memory model, a region of the memory, which is this, is established, which is shared between the cooperating processes. Cooperating process कौन से? Process A और B. Process can then exchange information by reading and writing data to the shared memory. तो प्रोसेस ए शेयर्ड मेमोरी पे रीड भी कर सकता है और राइट कर सकता है. मान लो कोई डेटा इसने राइट किया, प्रोसेस बी ने उसको रीड किया, प्रोसेस बी ने अपना कोई डेटा इस पे राइट किया, प्रोसेस ए ने उसको रीड किया. इस तरह से दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. लेकिन कौन से मॉडल से? शेयर्ड मेमोरी मॉडल से. यानी वो एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस में अपने रिसोर्सेज रखते हैं, जिसको जब जरूरत पड़ती है उस पर रीड राइट कर सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, no, maybe. Sumaya, Sajjan, can you guys hear me? Yes. Cool. अब आता है मैसेज पासिंग मॉडल. मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है? कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन द कोऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल, प्रोसेस ए को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा? इट सेंड्स अ मैसेज टू कर्नल. वो कर्नल को एक मैसेज भेजेगा, इसीलिए उसका नाम होता है मैसेज पासिंग. मैसेज पास करते हैं. इसको कुछ रिसोर्स चाहिए, वो मैसेज पास करेगा कर्नल को. देन कर्नल विल देन सेंड दैट मैसेज टू प्रोसेस बी. तो कर्नल प्रोसेस बी को वो मैसेज भेजेगा. इस तरह से वो मैसेज पास करेंगे. इसको अगर ए को कुछ भेजना है तो वो पहले कर्नल को भेजेगा, कर्नल इसको भेजेगा. इसीलिए इसको मैसेज पासिंग मॉडल करते हैं, क्योंकि अगर कोई रिसोर्स चाहिए, कम्युनिकेट करना है उनको, तो वो मैसेज पास करना पड़ता है. इसमें शेयर्ड मेमोरी नहीं होती है, इसमें कर्नल काम करता है हमारा. ये कर्नल को भेजेगा, फिर कर्नल इसको पास कर देगा. तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मैसेज पासिंग मॉडल. ठीक है. सो सुमैया, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज द शेयर्ड मेमोरी मॉडल एंड मैसेज पासिंग मॉडल? Okay, I think I didn't understand it very well. You didn't understand? I understood it somewhat. Okay, can you at least give it a try कि शेयर्ड मेमोरी क्या होता है? So it's shared memory. Mm-hmm. Both the processes, process A and process B, Yeah. they use the same memory. Correct. Correct. Excellent. और सज्जन, मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है? Okay. मैसेज पासिंग में या सो वहाँ पे मैसेज आता है, वो प्रोसेस ए से कर्नल पे जाएगा, कर्नल से प्रोसेस बी पे. परफेक्ट, बस एकदम सटीक आंसर है, यही है उसका आंसर. मैसेज पासिंग में कोई कम्युनिकेट करना हो, कम्युनिकेशन करना हो, तो पहले कर्नल को भेजना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ मैसेज. इसी नाम से पता चलता है मैसेज, एम लिखा देखो, और ये मैसेज प्रोसेस बी को भेजेगा. तो आपस में कम्युनिकेट करना है तो कर्नल के थ्रू करेंगे, और यहाँ पे कम्युनिकेट करना है तो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू करेंगे. ठीक है. एग्जाम के टाइम इतना याद आएगा क्या? मुझे डर लग रहा है अभी. इसीलिए तो रिवाइज करेंगे ना, रिवीजन इसीलिए तो है. करना ही पड़ेगा. देखा नहीं, अभी रिवाइज किया ना हमने कल का, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज किया है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी रिवाइज किया है. हम कल फिर रिवाइज करेंगे इसको. रिवीजन बहुत जरूरी है.
अब वो 4 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम उसको रोज रिवाइज कर रहे हैं ताकि याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। Synchronization involves orderly sharing of system resources by processes. It ensures mutual execution, exclusion, and event ordering. Inter-process synchronization में होता है critical section. So critical section is a part of program in which it is necessary to have exclusive access to shared data, which means only one process should be executed at a time. एक प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं करेगा दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक क्रिटिकल सेक्शन एक प्रोग्राम का पार्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम फेस डिफिकल्टीज इन अलाउइंग और डिसअलाउइंग प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग दिस क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन एक पार्ट होता है प्रोग्राम का जहां पे डेटा को एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस डेटा का एक्सक्लूसिव एक्सेस पाता है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन है इसका, ठीक है। एक प्रोसेस ही वहां पे एग्जीक्यूट होगा एक टाइम पे। तो डू वाइल है, वाइल ट्रू, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन। Okay, Sajjan, can you recap this, please? Sure. Inter-process synchronization, critical section. Critical section is a part of a program in which it is necessary to have exclusive access to shared data, which means only one process should be executed at a time. Programming system faces the difficulties in allowing the disallowing the process from entering the critical section. Yeah. Okay. Okay, can you read? Any solution to critical section problem must satisfy 3 requirements. Mutual exclusion, also known as the mutexes. One resource should only be used by one person at a time. Two processes should not be attempting to update the same bank account. A mutual exclusion can be achieved by a system of locks. A mutual exclusion lock is also called mutex. Second is progress. If no process is executing in the critical section and other processes are waiting outside the critical section, then only those processes that are not executing in their remainder section can participate in the deciding which will enter the critical section next, and the section cannot be postponed indefinitely. Right. तो यहाँ पे कह रहा है कि कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो एक इश्यू है, हर प्रोसेस चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए और एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अब कैसे डिसाइड हो कि कौन जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं एक चैलेंज फेस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कि कैसे डिसाइड करें किसको अलाउ करें किसको डिसअलाउ करें एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। जो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचा वो एग्जीक्यूट होकर एग्जिट हो जाएगा, तो किस बेसिस पे करें। तो वही बता रहा है कि कुछ रूल्स हैं जो मीट होने चाहिए, कुछ ये सेटिस्फाई होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाके एग्जीक्यूट हो जाए। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अभी तुम बैंक में जाते हो, जैसे बैंक को मान लो तुमने कुछ पैसे जमा किए, तो जो बंदा काउंटर पे बैठा हुआ है वो तुम्हारा बैंक अकाउंट अपडेट करेगा। अब उनका सिस्टम तो एक ही है, उसी टाइम पे हो सकता है कोई दूसरा बंदा भी किसी दूसरे कस्टमर का बैंक अकाउंट अपडेट करता हो, तो एक टाइम पे दो नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल टू प्रोसेस शुड नॉट बी अपडेटिंग द सेम बैंक अकाउंट, एक टाइम पे एक ही करना चाहिए। तो यही वो बोल रहा है कि one resource should only be used by one process at a time, not two processes. और ये कैसे अचीव हो कि एक टाइम पे एक ही रिसोर्स यूज हो एक प्रोसेस के थ्रू, बाय लॉक्स। लॉक्स हम आगे पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे पढ़ते हैं, प्लीज कैरी ऑन। Okay. Inter-process synchronization, progress. If no process is executing in a critical section and other processes are waiting outside the critical section, then I think it did हो चुका है। ये नीचे प्रोग्रेस वाला पढ़ो। Okay. Only those processes that are not executing in their remainder section can participate in the deciding which will enter in the critical section next, and the section cannot be postponed indefinitely. Okay. Carry on. And yeah,
Any solution to be critical section problem must satisfy the three requirements. Bounding waiting. A bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical section. After a process has a made request to enter its critical section and before that request is granted. तो बाउंड का मतलब है कि लिमिट, बाउंड मतलब किसी चीज को बाउंड करना। तो प्रोसेस ट्राई करेगा एंटर करना क्रिटिकल सेक्शन, बट कितनी बार उसको अलाउ करेंगे, तो उस पर एक बाउंड लगाना है, वो लिमिट लगाना है उस पर। वही ये कह रहा है कि a bound must exist on number of times that other processes are allowed to enter the critical section। दूसरे प्रोसेस कितनी बार अलाउ करें हम उनको, उस पर एक लिमिट होनी चाहिए। तो इट्स वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है। कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, यानी एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स मिलनी चाहिए और किसी प्रोसेस को वो रिसोर्स नहीं मिलनी चाहिए एक टाइम पे। दूसरा प्रोग्रेस है और तीसरा है बाउंडेड वेटिंग, मतलब लिमिट होनी चाहिए कि एक प्रोसेस कितनी बार क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं, वही बता रहा है। कैरी ऑन। Okay. We will now discuss now how to solve them using different algorithms. Baker's solution and bakery algorithm. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकरी एल्गोरिथम। बेकर्स सॉल्यूशंस का आने का चांस बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग पढ़ना तो पढ़ लीजिए, दोनों में से एक आ सकता है, लेकिन 90% चांस ये है कि बेकरी एल्गोरिथम आएगा कंपेयर टू डेकर्स सॉल्यूशन। तो मैं रेकमेंड करूंगा बेकरी एल्गोरिथम पढ़ो ही पढ़ो, उसको तो पढ़ना ही है और बहुत इजी है बेकरी एल्गोरिथम। तो अपन बेकरी एल्गोरिथम पढ़ेंगे तुरंत और उसके बाद आज को सभा समाप्त करेंगे, ठीक है। तो बेकरी एल्गोरिथम, तो हाँ, ये एल्गोरिथम है क्या बेसिकली? ये सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम? क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम। तो क्या वो प्रॉब्लम थी? अभी हमने डिस्कस किया कि हर प्रोसेस चाहता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे ताकि उसको एग्जीक्यूशन का मौका मिले, क्योंकि हर प्रोग्राम चाह रहा है एंटर करना, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन एंटर करेगा? तो उसके लिए ये सेटिस्फाई होनी चाहिए रिक्वायरमेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बाउंडेड वेटिंग, प्रोग्रेस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसके अलावा हम कुछ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि कौन से प्रोग्राम को हम अलाउ करें, कौन से प्रोसेस को अलाउ करें वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाए। तो वो एल्गोरिथम्स में दो होती हैं, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एल्गोरिथम लैम्पर्ट करके एक बंदा था, उसने लिखी थी, ठीक है। इसने प्रपोज किया था एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू सॉल्व द एन प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या था कि एक टाइम पे एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं, यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन था। तो इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फेयरेस्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। तो अब बेकरी एल्गोरिथम क्यों कहते हैं इसको? तो बेकरी में आप गए होगे, तो बेकरी में क्या होता है? बेकरी में जब बंदा जाता है अंदर, मतलब हर बेकरी में नहीं, कुछ बेकरी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं, जैसे कि हमारे पुणे में कल्याणी बेकरी करके है, वो बहुत पॉपुलर है, तो वहां पर नंबर लगाना पड़ता है, तुरंत जाकर नहीं मिल जाता। तो आप अंदर जाओगे तो आपको टोकन मिलेगा। अब क्या सेम एक ही टोकन सबको मिलेगा? नहीं। तो टोकन दें कैसे, कैसे डिसाइड करें किसको टोकन देना है, क्या देना है? तो उसमें क्या होता है कि आपको जब आप एंटर करोगे तो आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। जैसे मान लो आपको मिला 122, तो आपके पहले जो आए होंगे उनको पहले वाला मिला होगा, आपके बाद कोई और आएगा तो उसको 123 या 124 मिलेगा। तो इस तरह से हर कस्टमर को एक टोकन मिलता है और टोकन के बेसिस पे उनको सर्व किया जाता है। तो वहां पे एक फ्लैश होता है टोकन नंबर, उस टोकन नंबर से आपको पता चलता है आपका नंबर आ गया, अब आप जाके बेकरी में आपको जो भी सामान खरीदना हो खरीद लो। तो यही सिस्टम यहाँ भी काम करता है। सो टू सम इट अप, इट इज कॉल्ड bakery's algorithm because this type of scheduling is adapted in bakeries where token numbers are issued to set the order of the customers. When a customer enters a bakery store, he gets a unique token number. Then the global counter, ये जो global counter है, that displays the number of customers currently being served and all others must wait
Once current customer is served, next number is displayed and the customer with the next token is served. Similarly, जैसे बेकरी में ये सिस्टम चलता है वैसे ही बेकरी एल्गोरिदम में प्रोसेसेस आर ट्रीटेड एज कस्टमर्स. प्रोसेसेस को कस्टमर्स की तरह ट्रीट किया जाता है. Each process gets a token number and process with the lowest number enters the critical section. तो जो प्रोसेस को सबसे छोटा टोकन नंबर मिलेगा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा. यही तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं ना कि भाई किसको पहले एंटर कराएं. सब चाहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में जाके एग्जीक्यूट हो जाए, तो किसको डालें. तो ये हम टोकन के बेसिस पे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेसिस पे हम उनको टोकन नंबर देंगे हर एक प्रोसेस को. जिसका टोकन नंबर कम होगा वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और एग्जिट हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस. So guys, I'm going out. चलो. ठीक है, नो प्रॉब्लम, कैरी Bye. ऑन. वैसे भी 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो 3 मिनट में मैं एंड कर दूंगा कॉल. Okay, चलो. बाय. थैंक्स यार ज्वाइनिंग इन. अरे thanks to you. ठीक है, चलो कैरी ऑन देन. आई विल सी यू टुमारो. ओके, हेलो. ओके, सो उसमें ये फॉर्मूला हमको लिखना है बेसिकली. डू चूजिंग आई इक्वल्स ट्रू एन आई मैक्स. ये पूरा ये याद करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. तो इसको बेसिकली एक्सप्लेन हमें करना है. तो बेकरी एल्गोरिथम हैंडल्स क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इन फॉलोइंग वेज. Before entering its critical section process, a process receives a number. The holder of smallest number enters the critical section. If process Pi and Pj receive the same number, then Pi is served first, else Pj. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. Let's say कि process P1 wishes to enter the critical section. तो वो क्या करेगा? Will first set the choosing I to true to make other process aware that is choosing the token. तो यहाँ पे ये choosing true सेट करके बाकी प्रोसेसेस को बताता है कि अभी वो टोकन चूज कर रहा है, तो अभी तुम लोग आ रहे हो तो रुक जाओ, अभी मुझे चूज कर लेने दो पहले, फिर तुम लोग आना. ट्रू सेट करता है वो. फिर यहाँ पे वो चूज करता है. ओके, देन इट सेट्स चूजिंग आई टू फॉल्स आफ्टर रीडिंग देम. तो यहाँ पे ये टोकन चूज करेगा जो भी मैक्सिमम नंबर था +1. यही होता है ना कि 120 नंबर चल रहा था तो +1 123 नंबर मिलेगा उसको. वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है. एक बार चूज हो गया टोकन नंबर, n के अंदर स्टोर हो गया टोकन नंबर, अब ये फॉल्स सेट करेगा. यानी और प्रोग्राम्स आएंगे और प्रोसेस आएंगे तो वो अपना चूज कर सकते हैं. यही प्रोसेस फॉलो होगा, फिर आगे बढ़ेगा. देन इट लूप्स टू इवैल्यूएट द स्टेटस ऑफ अदर प्रोसेसेस. अब यहाँ लूप करेगा और चेक करेगा कि बाकी प्रोसेसेस का क्या स्टेटस है, कोई एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा है. इट वेट्स अंटिल अदर प्रोसेस pj finishes choosing its token. तो मतलब अगर इस बीच कोई और चूज कर रहा है तो वो वेट करेगा उस टाइम के लिए. वाइल चूजिंग, देखो चूजिंग पे ट्रू अगर सेट है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, रुकेगा, क्योंकि जब ये यहाँ पहुंचा है तो कोई और प्रोसेस यहाँ पे आया होगा और वो चूज कर रहा होगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता. pj then waits until all process with smaller token number or the same token number but higher priority are served fast. When the process finishes its critical section execution, it resets the number back to 0. तो बेसिकली यहाँ पे आके जब उसको मौका मिलेगा, जब वो फ्री हो जाएगा तो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा. एग्जीक्यूट करने के बाद अपनी वैल्यू पे 0 सेट कर देगा ताकि वो टोकन नंबर पे किसी और को दिया जा सके और एग्जिट कर जाएगा. तो यही बेसिकली हमारी बेकरीज एल्गोरिथम है जो कि हमें एग्जाम में एक्सप्लेन करनी है और ये कोड लिखना है बेसिकली. ठीक है, तो कॉल इज अबाउट टू ड्रॉप गाइस. कल के लिए 1 बजे टाइम ठीक रहेगा क्या, या 1 बजे प्रॉब्लम है कुछ? तो भैया कॉल ड्रॉप होने वाला है. 1 o'clock is a bit difficult for me. What time will you be free? Same time as today, 7. 7? No problem. We'll meet at 7 then. Thanks, Sumaya. Thanks for joining in. Thanks for listening. Thank you, Gita. Bye. Bye, guys.